Morning, student. Today we are going to read the chapter A Gift of Chappals. A Gift of Chappals, which was written by Vasantha Surya. In the story about the mischievous and simplicity of children's behavior, they wish to explore every aspect but act according to their logic. And it also tells about the fantasy of children, expressing their whims, their simplicity of behavior, their feelings and their act of charity. कि किस तरीके से वो सब कुछ चैरिटी में अपना जो भी उनके पास अच्छा होता है वो दे देते हैं. So the story begins with Mridu. Mridu goes to Rukmani's house. Mridu is a young girl here, living with her grandmother, Tapi. In Tamil, grandmother को तापी कहा जाता है and grandfather is called Tata in Chennai. So Mridu goes along with Tapi to her aunt Rukmani's house and there she meets her cousin Lali, Ravi and Meena और वो उन तीनों कज़न से वहाँ पर मिलती है. Everyone at Rukmani's house was glad when they saw Mridu. There was a small kitten inside a torn football, and this small creature was busy drinking milk that was kept inside a half shell of coconut. और मृदु को लाली, रवि, मीना सब उस कैट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. They informed her that they have named the kitten as Mahendra, how they feed the cat, and even they didn't tell about cat to their grandmother. They have kept it as a secret. Now let's start reading the chapter with the explanation. A gift of chappals. A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. A smiling Rukmani threw open the door. मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना भागते हुए आए. रश्ड मीन रन, भागते हुए आना. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. देन मृदु इज सेइंग कि मुझे अपनी स्लीपर्स तो खोलने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. प्रोटेस्टेड मीन रिवॉल्ट करना, विरोध करते हुए कहा. She set them out neatly near a pair of large black ones. फिर उसने उन्हें बड़ी काली सी ग्रे कलर की चप्पल्स के निकट के पास रख दिया. Those were grey, actually with dust. वो काली थी, ग्रे कलर की थी. और किस वजह से वो काली दिख रही थी? क्योंकि उस पर धूल चढ़ गई थी. You could see the clear marks of every toe on the front part of each slipper. वे वास्तव में धूल के कारण मिट्टी से थी, तो उस चप्पल के अगले भाग पर You could see, आप देख सकते हैं, every toe, जहाँ पर हर अंगुली की छाप पड़ी हुई थी. On the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. और जो मार्क थे, निशान थे, अंगूठों के निशान, वो बहुत बड़े और स्क्रॉनी. स्क्रॉनी मीन थिन, पतले से मार्क्स थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk for a coconut half shelf.
सो मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास ज़्यादा टाइम नहीं था यह जानने का अबाउट हु स्लीपर्स देवर, कि ये स्लीपर्स किसके हैं। बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने उसे खींच लिया था। ड्रैग्ड मीन पुल्ड, खींचना, ड्रैग्ड मीन पुल्ड। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, किसके पीछे, एक तीखी बेरी की झाड़ी के पीछे, बुश मीन झाड़ी के पीछे वो उसे खींच कर ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. So there inside a torn, वहाँ पर एक फुटबॉल, फटा हुआ फुटबॉल था, टॉर्न फुटबॉल। अंदर एक उस पर लाइंड विथ सैकिंग, और एक उसमें सैक रखा हुआ था जिस पर रेत बिछी हुई थी, फिल्ड विथ सैंड, और उसको रेत से भर दिया था। ले अ वेरी स्मॉल किटन, और उस पर एक स्मॉल किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वह दूध पी रहा था कोकोनट के हाफ शेल से, मतलब नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing, poor thing, said Meena. It is secret. Amma says, Pati will live for our. Paddu Mama's house if she knows we have a cat. So, ये मीना ने कहा, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, हमें ये सुबह मॉर्निंग में मिला था गेट पर। ही वॉज म्यूइंग, और वो म्याऊ म्याऊ चिल्ला रहा था बेचारा। सेड मीना, मीना ने कहा, इट इज़ सीक्रेट, यह सीक्रेट है। अम्मा सेस, अम्मा ने कहा है, पाती विल लिव, पाती हमें छोड़ के चली जाएगी, फॉर आ पड्डूज मामाज हाउस, और वह पड्डू मामा के घर चली जाएगी। इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट वैन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink the most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wish it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run. So, पीपल आर ऑलवेज सेइंग, लोग हमेशा यही बोलते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमें काइंडफुल होना चाहिए एनिमल्स के लिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम काइंड होते हैं, सो दे स्क्रीम, वो चिल्लाने लग जाते, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि ऐसे गंदे से एनिमल्स को, क्रिएचर्स को घर में नहीं लाओ, सेड रवि। रवि बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि क्या तुम जानती हो कि रसोई से दूध लाना कितना कठिन है? पाती सॉ मी, उन्होंने मुझे देख लिया, पाती ने, ग्रैंड मदर ने, पाती ने मुझे अभी अभी दूध का ग्लास लाते हुए देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे कहा मुझे बहुत भूख लगी है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, जैसे ही वो मेरी तरफ देखी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, और मुझे उनमें से बहुत सारा दूध पीना पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सैंड, थ्रो हर ऑफ द सैंड मीन, ताकि उनको बेवकूफ़ बना सकूँ मैं, उनका वो समझ नहीं पाए कि मेरा रियल पर्पस क्या है, कि मैं दूध क्यों पी रहा हूँ। उसे फिर वह देन शी वॉन्टेड ए टम्बलर बैक, और फिर उन्हें वो वापस टम्बलर, टम्बलर मीन क्लास, टम्बलर मीन क्लास, उन्हें वापस चाहिए था। पाती, पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूँ? आई टोल्ड हर, मैंने कहा।
I had to run. मुझे भागना पड़ा. And pour the milk into coconut shell. और ये फटाफट मुझे मिल्क को कोकोनट शेल में रखना पड़ा. देन रन बैक और वापस भागना पड़ा. एंड वॉश द टम्बलर और टम्बलर को ग्लास को धोना पड़ा. पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और उससे पहले उन्हें मुझ पर डाउट हो. सस्पिशियस मतलब डाउटफुल होना. उन्हें मुझे शक हो उससे पहले ही मैंने टम्बलर को धो के रख दिया. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र. अब हमें कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा ताकि हम महेंद्र को कुछ खाना खिला सकें. महेंद्र, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्र. आपने इस लिटिल किटी का नाम क्या महेंद्र रखा है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. मृदु बहुत ज़्यादा इम्प्रेस प्रभावित हुआ. इम्प्रेस मतलब स्टार्टेड टू हैव एडमायर. उसको आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हो. इट वॉज अ रियल नेम. ये इसका रियल नेम है. नॉट जस्ट अ क्यूट किटी केट नेम. ये सिर्फ क्यूट किटी का नेम ही नहीं है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's man. And you know what the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? Don't you? He looked expectantly at Mridu. इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है. MP पुनई फॉर द शॉर्ट. और MP पुनई इसको शॉर्ट में पुकारा जा सकता है. इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये अच्छी रेस का ब्रीड की कैट है. जस्ट लुक एट इस फर. आप इसके फर देखिए. लाइक ए लायंस मैन, जैसे कि लायंस के लायंस मैन मतलब जैसे लायन के हेयर्स होते हैं. मैन मीन हेयर अराउंड द नेक ऑफ द कैट. And you know what's the emblem of the ancient Pallav king was? कि पल्लव राजाओं का एम्बलम क्या था? Don't you know? Don't you? आपको पता है? He looked expectantly at मृदु. और वो मृदु से hopefully. Expectantly mean hopefully. Hopefully मृदु की तरफ देखने लगा. मृदु giggled. Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you some time. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tristra. Fact is, Mahendra here is descended from that very same ancient cat. A close relative, scientifically speaking, none other than the lion. The Pallav lion, emblem of Pallav dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi Cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. मृदु giggled. मृदु हंसने लगी. Think I'm joking? क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल, जस्ट वेट. तो ज़रा रुको थोड़ा. आई शो यू सम टाइम. मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये सब स्पष्ट बता दूँगा. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. इट इज़ क्लियर. इस बात से ये पता चलता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम. हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? ही सैड मिस्टीरियसली. उसने मिस्टीरियसली पूछा. मिस्टीरियसली मीन विच इज़ अ थिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. मुश्किल से समझ में आना. मिस्टीरियसली मीन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thata. Fact is, Mahendra here is descended from that very same ancient king. इसे बहुत क्लियर होता है कि महेंद्र, जब मैंने इस स्टैचू को देखा
जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने इस स्टैचू को देखा कि ये महेंद्रन, फैक्ट यही है कि महेंद्र डिसेंडेड फ्रॉम मीन ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है, डिसेंडेड फ्रॉम मीन कम फ्रॉम, उसी फैमिली से, दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, जिससे ये कैट बिलोंग करते हैं। अ क्लोज रिलेटिव, ये उनका रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग नन अदर देन द लायन, ये लायन का रिलेटिव है, ये लायन की फैमिली से बिलोंग करता है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, पल्लव शेर पल्लव डायनेस्टी वंश का राष्ट्र चिन्ह, एम्बलम मीन सिंबल। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता रहा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, और वह झाड़ी के चारों ओर घूमता रहा। वेविंग अ ट्विग अप डाउन, और टहनी को, ट्विग मीन टहनी को ऊपर नीचे घुमाता रहा। His eyes sparkling and his eyes were shining. This cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि के, यह बिल्ली जो महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली के अलावा किसी और डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करती है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, यह लोग, मिस्र के लोग, इजिप्ट के लोग कैट्स की भी पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट, गॉड नो गॉडेस। बास्टेट, या दैट्स इट। सो well, one of the descendants of that cat goddess was stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishike, whose descendant Ravi flourished his twig at the Mahendran. MP Punaiya, whoop, heek, he shrieked, very pleased with himself. So, how he loved the sound of his own voice. उसे अपनी आवाज़ से ही प्यार हो गया। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, एंड मीना एंड मृदु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उनको इनसे सबसे क्या मतलब। मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। हो, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताता हूँ, दिस कैट इज़ डिसेंडेड, कि यह बिल्ली डेफिनेटली इजिप्टियन गॉड, कैट गॉड से बिलोंग करती है। नो गॉडेट्स, कोई गॉडेस नहीं। बास्टेड, दैट्स इट, यही है बस। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। सो हाँ, एक बिल्ली, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ मीन द शी कम्स फ्रॉम द फैमिली। So, well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of Pallav ships, and his cat descendant was the Mahabalipuram Rishikeet. हाँ, एक बिल्ली देवी के एक वंशज एक पल्लव जलपोत में आ गई है और उसी की वंशज थी, और महाबलीपुरम ऋषिकेट वो थी। Whose descendant is, जिनके वंशज है रवि flourished his twigs, रवि flourished mean waved, हिलाना, घुमाना, किसको, फिग को मूव कर रहा है रवि, किसकी तरफ, महेंद्रन की तरफ। एमपी पुनई हियर, एमपी पुनई है, वचिका, वो एक, ही श्रिक्ड, चिल्लाया, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, और वो अपने से ही काफ़ी खुश था। महेंद्रन looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Here standing on and he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. So,
महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा। He had just been sharpening his claws. Still, वह अभी भी अपने पंजों को शार्प कर रही थी ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल के किनारों पर। बट वॉज देन रवीज ऑफुल, वो एक वॉज अ क्रीच, लेकिन रवि की डरावनी आवाज़ से, चिल्लाने से वो डर गई। फ्रॉम द विंडो, विंडो से। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितना वियर्ड साउंड है। इफ मृदु वॉज स्टार्टल, अगर मृदु सरप्राइज हो गई, स्टार्टल मीन सरप्राइज होना। एम्पी बुनई वॉज फ्राइटेंड, एम्पी बुनई तो और ज़्यादा डर गई होगी। आउट ऑफ इट्स विट्स, और उसका तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा और वह डर कर घबरा गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन हैंड, और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, और उसने जंप किया। एंड स्कर्रिड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्री, और वो भाग कर गई। स्कर्रिड मीन रैन, भागना। टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज, जो भागकर लाल मिर्च के एक बैम्बू से बनी प्लेट की ओर गई। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो वो वहाँ पर सुखाने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसने उसके नीचे छिपने के प्रयास में ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज, और उसने कुछ मिर्च अपने ऊपर डाल दी। ओवर हिमसेल्फ म्याऊ, ही हाउल्ड मिजरेबली, और वह दुखी आवाज़ में फिर से चिल्लाने लगी। मिजरेबली मतलब पिटीफुली, बहुत दुख के साथ। The screeching went on and on. What's that noise? said Mridu. That's Lali's learning to play the violin, grunted Ravi. So, ये तीखी आवाज़ कौन सी है? Screeching went on and on, continuously आ रही है। ये शोर कैसा है? What that noise? said मृदु ने कहा। That's Lali's learning to play the violin. लाली वायलिन बजाना सीख रही है। रवि ने गुस्से से कहा। Grunted मीन बड़बड़ाना, made a short low sound. She will never learn a thing. The music master just go on playing like a train whistling on and on, while Lali's all the time drilling, going completely fall off track. यह कभी भी कुछ नहीं सीख सकती। द म्यूज़िक मास्टर, जो संगीत का म्यूज़िक मास्टर टीचर है, जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग, वह लगातार बजाता रहता है जैसे कोई रेलगाड़ी। जस्ट लाइक अ ट्रेन, विजलिंग ऑन एंड ऑन। विजलिंग मीन मेकिंग अ बजिंग साउंड, विजलिंग मीन मेकिंग अ बजिंग साउंड। On and on, while Lali's all the time drilling. Drilling mean leaving the right track. Lali was not following correct track. Going completely off the track, और वो बिल्कुल बेसुराग आ रही है, मतलब she was not completely following the track which was the music master is teaching to her. Now we have completed part first of the chapter of Gift of Chapel. Thanks for watching the video.